Very good morning to all of you. This is Abhilsha, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 7 of your history textbook. The name of the chapter is Ashoka, the Emperor Who Gave Up War. In our previous class, we discussed about a little bit about the Kalinga War. Okay, so Kalinga was the Kalinga is the ancient name of present day Odisha, present day coastal Odisha. This was the only war which Ashoka fought himself, and after the victory, he gave up. He gave up war. Okay, he was the only ruler in the history, in the books of history, where he gave up war after winning. He gave up war. Okay, he fought a war to conquer Kalinga. उन्होंने किस लिए war किया था? कलिंगा को conquer करने के लिए, कलिंगा को capture करने के लिए. But after the incident, the situations happened after the war, the horrified situations he saw, the violence he saw, the bloodshed he saw. It was so horrified that he took a pledge that he will never fight. He will never fight any kind of war. And after this Kalinga war, he gave up wars. He ruled his empire for 40 years, very politely, very calmly, very peacefully. Okay, so now Ashoka's inscription describing the Kalinga war. Inscription, the words which can be put into walls or any metal material, ठीक है, जिसमें कट करके या खुरेद के लिखा जाता है. So this is what Ashoka declared in one of his inscriptions. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? So now Ashoka, in one of his description, he declared, he said to the common people कि 8 सालों से मैं ये war जो है लड़ रहा हूँ, और मैंने कलिंगा को, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा जो है, कलिंगा को मैंने कैप्चर भी कर लिया, कॉन्क्वेर भी कर लिया. बट इस ये जो वॉर था, इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है कैप्चर हुए, एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड. एंड इन सब से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ. सॉरो का मतलब होता है दुख. मैं मतलब लाइक दिस फिल्ड मी विद सॉरो. व्हाई? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. He said, जब भी किसी लैंड को, किसी भी इंडिपेंडेंट लैंड को, किसी भी फ्री लैंड को कॉन्क्वेर किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, तो लाखों लोगों की उसमें डेथ होती है. लैक्स ऑफ पीपल डाई, many are captured, many people are taken as prisoner, many people are captured. Even Brahmins and monks, उनकी भी डेथ हो जाती है. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants, die or lose their loved ones. ऐसे लोग, मतलब हम आपस में रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से हम कितना प्यार करते हैं, उनके जो स्लेव्स हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं, वो भी मरते हैं. मतलब जिससे हम इतना प्यार करते हैं, वो क्या है, लोगों के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, उनके लव्ड वंस जो हैं, उनकी डेथ हो जाती है. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. So, और उसने कहा, इसलिए मैं sad हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, और अब मैंने decide कर लिया है, I will go on the path of the Dhamma. धर्मा को बोला गया है यहाँ पे धम्मा, कि मैं violence नहीं करूंगा, peacefully रहूंगा, प्यार से रहूंगा. So, even दूसरों को भी मैं ये teachings दूंगा कि हमें प्यार से रहना चाहिए. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. Okay. Now take your own example. अगर आपसे कोई भी प्यार से बात करता है, ठीक है, तो आप प्यार से वो बात मान लेते हो और आपको अच्छा भी लगता है, ठीक है, you respect that person. But
आपसे कोई फोर्सफुली आपको डांट के, फोर्सफुली आपसे अगर कोई काम करवाए, यू डोंट लाइक इट, आपको पसंद नहीं आएगा, इवन यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, राइट? सो अशोका के लिए भी यही था कि अगर मुझे लोगों के दिल जीतने हैं तो मैं धम्मा से जीतूंगा, मैं ट्रुथ से, नॉन वायलेंस से जीतूंगा, ठीक है? उनको कॉन्क्वेर करके, उनको कैप्चर करके, फोर्सफुली उनको कैप्चर करने से बहुत ज्यादा बेटर है कि मैं उनको उनके दिलों से, उनको दिल से क्या करूं, उनको दिल से, उनको धम्मा के पाथ से उनको चूज करूं, उनके धम्मा के पाथ से उनको मतलब उनके दिल में अपनी जगह बनाऊं। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Okay, this particular message, he inscribed this message for his future generation, for his son, for his grandson, that कि जब भी मैं आगे वो देखे तो उन्हें पता रहे कि हमें वॉर नहीं लड़ना है। Instead, they shouldn't try to think about how to spread धम्मा, और इसके वॉर के अलावा और वो ये भी करे कि हमें धम्मा के पाथ को चूज करना है और हमें धम्मा को स्प्रेड करना है। So how did the Kalinga War bring about a change in Ashoka's attitude towards war? You have seen, like वो टोटली एक रूलर था जो कॉन्क्वेर करता था इतनी पूरे इंडिया, प्रेजेंट डे हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के उसने पूरे हिंदुस्तान को कॉन्क्वेर कर लिया था, बट a single war which he fought himself of Kalinga, it it changed the Ashoka's attitudes towards war. वो उसने धम्मा के पाथ को चूज कर लिया, he gave up war. उसने देखा कितना वायलेंस हो रहा है, कितने लोग सैड हो रहे हैं, कितने लोगों से उनके रिलेटिव्स जो हैं दूर हो रहे हैं, तो he gave up all these things, he gave up all these sorrowings, he gave up war, जिससे कि सब खुश रह सके। Okay, now what is dhamma? Dhamma is the Prakrit word for the Sanskrit term धर्मा। धर्मा, हम धर्म सुनते हैं ना, कभी ना कोई भी सुना होगा आपने, धर्म करना चाहिए, धर्म। तो धम्मा जो है प्राकृत वर्ड है और संस्कृत में इसका टर्म है धर्मा। So now what was Ashoka's dhamma? Question arises कि अशोका का धम्मा रिप्रेजेंट क्या करता है? Ashoka's dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. We will talk in your earlier chapter we talked about Buddha, ठीक है? बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमने पढ़ा, तो he was very well inspired by Buddhism. He followed Buddhism. He was very well inspired by Lord Buddha. तो अशोका के जो धम्मा था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर गॉड की हमें वर्शिप करनी है या फिर कोई सैक्रिफाइस करना है, किसी की बलि चढ़ानी है, नो, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। इवन उनको ऐसा लगा कि जैसे एक पिता, जैसे एक फादर अपने बच्चे को क्या करता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है, उसे चलना सिखाता है, उसे खाना सिखाता है, वैसे ही मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं भी अपनी प्रजा को, मैं भी अपने जो मेरे नीचे जितने भी लोग हैं, ठीक है, कॉमन सिटीजन्स हैं, मैं उनको इंस्ट्रक्ट करूं, उन्हें धम्मा के बारे में बताऊं। सो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। ऑब्वियसली कोई भी आप अच्छा काम करने जाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई अशोका के सामने भी। People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as Dhamma Mahatma, who went from place to place teaching people about Dhamma. Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. Now, obviously, so many problems were there, so many problems came in the path of the Ashoka's Dhamma.
पीपल इन द एम्पायर, ऑब्वियसली जो इतना बड़ा किंगडम था, इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे, जिससे कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ होना, ठीक है, लोगों के मतभेद नहीं मिलते थे, मतभेद काफी आता था। बहुत सारी ऐसे रिलीजन्स थे जहाँ पे एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। दे वर ट्रीटेड सो इल ट्रीटेड, दे वर सो इल ट्रीटेड। ओके, फैमिलीज में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, क्वेरल्स होते थे, ठीक है, अमंग नेबर्स में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी। तो वो अशोका ने कहा ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। सो फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, जिनको धम्मा महात्मा के नाम से जाना जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एंड they teach people about dhamma. Even Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars. Rocks में, pillars में उन्होंने अपने messages को वो क्या करवाते थे, inscribe करवाते थे। Even his official, he instructed his officials that you all are supposed to read his messages to those who could not read it themselves. तो आपको उनके लिए ये सारी चीजें रीड करनी है जो खुद रीड नहीं कर सकते हैं। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. ओके, सीरिया हो गया, अदर कंट्रीज में भी, अदर रीजन्स में भी, अदर लैंड्स में भी अशोका ने अपने मैसेंजर्स को, ठीक है, मैसेंजर्स कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जो किसी एक पर्सन का मैसेज लेके एक दूसरे लैंड में जाते हैं, कहीं और जाते हैं। तो सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, यहाँ पे भी अशोका ने जो है धम्मा को स्प्रेड करने के लिए मैसेंजर्स सेंड किए थे। He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. उन्होंने बहुत सारे रोड्स बिल्ड करवाए, कुएं बनवाए, ठीक है, डग वेल्स मतलब कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस, जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए, इवन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स का उन्होंने अरेंजमेंट किया था। नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 72। दिस इज द रामपुरवा बुल। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, ठीक है, अगर किसी भी स्टोन से कोई स्टैच्यू बना हुआ होता है, कोई भी एक मूर्ति बनी हुई होती है, उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं, ठीक है। दिस वाज पार्ट ऑफ अ मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा, बिहार एंड हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ये अशोका के टाइम की, मॉडर्न टाइम की ये जो है रामपुरवा बुल है। तो लुक एट द लाइक स्किल, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, स्कल्पचर्स थे, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस पिलर को बनाया है, रामपुरवा बुल को बनाया है। देखो, जस्ट लुक एट दिस, इट इज लुक वेरी फाइन स्कल्पचरिंग। ओके, सो आज के डेट में कहाँ पे है ये? राष्ट्रपति भवन में है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, वहां पे इसको सिचुएट किया गया है। और ये मिला कहाँ था? रामपुरवा, बिहार में इसको फाउंड किया गया था। ओके, सो नाउ Ashoka's message to his subjects. People perform a variety of rituals. Rituals मतलब होता है रीति रिवाजी, ठीक है। When they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. So obviously so many rituals are there. हमारे घर पे भी शादी है या फिर किसी का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, या कोई जर्नी पे जाता है तो हम एक कोई स्पेशल जो बोलते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स जो है हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तब भी हम कोई ना कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, या फिर कोई हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है। These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? अब ये देखिए, अशोका का मैसेज था ये कि ये जो रिचुअल्स करते हो ये इतने यूजफुल नहीं है, इनके अलावा हमें क्या करना चाहिए? दूसरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है फ्रूटफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? These are being gentle with slaves and servants.
जो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, जो नौकर हैं, जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, हमें उनके साथ बहुत ही कामली, पोलाइटली, जेंटली क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए दे आर वर्किंग कि वो एक तो गुलामी की तरह काम कर रहे हैं, नौकर हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसे भी इल ट्रीट कर सकते हैं। नो, वी शुड नॉट ill treat those persons. Okay, we all are human beings and we should behave properly, we should behave gently with everyone, चाहे वो कोई भी हो। Respecting one's elders, even I should say कि हमें elders के साथ नहीं, हमें चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमें सबका आदर करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, ठीक है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, हमें उनके उनके साथ कैसे हमें उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। कंपैशन, कंपैशन मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग फॉर समबडी हु इज सफरिंग, ये जो क्रिएचर है, अगर हमने उसको मारा या फिर हमने उसके साथ अल्टरेट किया, तो ये भी क्या है, उनको भी बहुत दुख होगा, उनको भी बहुत सारी लाइक मतलब उनको भी बहुत सारा क्या होगा, सफरिंग होगा। तो हमें समझना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, मॉन्क्स को, ब्राह्मण्स को हमें गिफ्ट्स देने चाहिए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, कि हमें ये बहुत ही बुरा है कि हम किसी एक रिलीजन को तो बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे रिलीजन को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एवरी रिलीजन इज इक्वल, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हमें सबके रिलीजन को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. And all these things are true in today's date also. If we are praising our own religion and criticizing others religion, in actuality what we are doing, we are doing greater harm to our own religion. हम अपने ही religion को क्या कर रहे हैं, harm पहुंचा रहे हैं। Like it is like telling us like what we are learning from our own ethics, ठीक है, our own religion, हम ये सीख रहे हैं क्या। तो अगर अकॉर्डिंग टू अशोका, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने खुद के रिलीजन को प्रेज कर रहे हैं और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने ही रिलीजन को हार्म पहुंचा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट इवन because we are not even thinking about our own religion, we are not giving respect to our own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को रिलीजन को के आइडियाज को भी समझना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, he was the first prime minister of India, he wrote his edicts, edicts का मतलब क्या होता है, instructions. Whose edicts? Ashoka's edicts, Ashoka's instructions still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Obviously all these things, we should respect our elders, we should respect our elders, we should give respect to other religions also. Okay, we should treat well to everyone, being gentle with slaves and servants. All these things are even true in today's date also. Okay, obviously. So he wrote, we can understand and we can still learn much from them. आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. This is your homework. You have to tell me what are the things which what are the messages given by Ashoka which is relevant even today. ठीक है। So now ये क्या है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। Most modern Indian scripts have developed from the Brahmi script over hundreds of years. Here you see the letter A written in different scripts. So Brahmi script है, script को अलग-अलग languages में क्या किया गया है, languages में लिखा गया है। Early Brahmi में ऐसे लिखा जाता था, से अनार ना ऐसे लिखा जाता था। देवनागरी इन प्रेजेंट, अभी जो हम हिंदी में देवनागरी को फॉलो करते हैं, तो देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोस्ट ऑफ आवर इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। सो elsewhere, this is the last topic.
Somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. आज से 2400 साल पहले जब मौर्यन एम्पायर था, उसी टाइम पे चाइना ने भी क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया था. It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. Pastoral कौन होते हैं? The persons who move from one place to another place with their livestock, with their cattle. उनको हम pastoral people बोलते हैं, जो अपने जानवरों के साथ, अपने कैटल, अपने शीप, अपने गोट्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उन्हें हम पेस्टोरल पीपल बोलते हैं. ठीक है. तो उनका मेन जो मोटिव था चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का, वो क्या था कि जिससे कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है, इंडिया से जो पेस्टोरल पीपल आ रहे हैं वो चाइना में एंटर ना कर पाए. Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. अब देखिए इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं. द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग. जस्ट लुक एट मतलब लाइक लुक एट द लेंथ, 6400 किलोमीटर. कितनी बड़ी वॉल है, 6400 किलोमीटर लॉन्ग ये वॉल है. एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. स्टोन और ब्रिक से बना हुआ है, विद रोड अलोंग द टॉप. अब रोड्स भी बनी हुई है बीच में. सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल. ऑब्वियसली बहुत हजारों लोगों ने इस वॉल को बनाने के लिए काम किया है. Therefore, there are watchtowers all along at distances of about 100 to 200 meters. Watchtowers, आज की डेट में watchtowers भी बना हुआ है. ठीक है. So this is all about this chapter. Now, question arises: in what ways do you think Ashoka's attitudes towards neighboring peoples was different from that of the Chinese emperors? Now, just look at this Great Wall of China. By building this Great Wall of China, they wanted to protect their land. They wanted to protect their region. They wanted to protect their everything. और अशोका उस टाइम पे इतने ग्रेट रूलर थे कि वहां के लोग नहीं चाहते थे कि अशोका का जो मैसेज है हमारे लोगों तक पहुंचे. एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड बिल्डिंग दीज टाइप्स ऑफ walls. Okay, so this is all about this chapter. Go through this chapter. If you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class, everyone. Please take care of yourself.